महाकान का तथागत भगवान बुच्ची ਨੂੰ कोटि कोटि नमन करते हुए विश्व रतन बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ਨੂੰ कोटि कोटि नमन करते हुए ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 765 ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਰ ਸੰਡੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਵੈਂਸਡੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਟ ਲੌਗ ਔਨ kanchetv.co.uk ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਧੰਨ ਭੀਮਾ ਧੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪਲੀਜ਼ਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇੰਡੀਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਡੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਡੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਡੇ ਜੋ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸੱਲਨ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆ ਸੱਲਨ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸੱਲਨ ਸੱਤਿਆ ਸੱਲਨ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਗਿੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗਿੰਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਸੰਘ ਦੀ ਇਨਕੰਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਗਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਪਾਧੀ ਬਣਨ। ਅਤੇ ਸਾਧੋ 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 ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਗਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਡਾਇਲਡੋਵੀ ਕ੍ਰੇਮਟੋਰੀਅਮ ਜੋ ਕਿ 17 ਹਾਮਲਿੰਗਟਨ ਰੋਡ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਹੈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਹੈ G717RU। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਰੋਹ
ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਬੌਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੜਕ ਭੜਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਥੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਥੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ऑन की जाए। के माध्यम से 12 अक्टूबर 2024 को नागपुर में जो दीक्षा समारोह हुआ उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। आप जो देख रहे हैं ये दीक्षा भूमि है, जो बाबा साहब ने यहाँ पे दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 को। आज यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं और पूरी दीक्षा भूमि पंचशील के ध्वज में रंग जाती है, नीले ध्वज में रंग जाती है। सभी लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए आते हैं। ये बोधि वृक्ष है जो बाबा साहब के माध्यम से वहाँ पे लगाया गया था और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आकर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं, अपने चित्त को शांत करने की कोशिश करते हैं। और ये दीक्षा भूमि हमें ये संदेश देती है कि आज हमें विश्व में युद्ध नहीं चाहिए, तो हमें बुद्ध चाहिए। और बुद्ध की पुकार ये आज विश्व की पुकार बन चुकी है। आज यहाँ पे कुछ वीडियोस आप जो देखेंगे, ये जो स्टॉल देख रहे हैं, इस स्टॉल में बौद्ध धम्म
दीक्षा विधि के प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। भिक्षु वहाँ पे खड़े हैं। ये भिक्षु यूपी, बिहार, जहाँ से उनको आने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ से ये सारे लोग दीक्षा भूमि पहुँचे हैं। और इस तरह से वहाँ पे जो जो लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से दीक्षा का प्रमाण पत्र बांटा जाता है। ये हमारी छोटी सी धम्म उपासिका है जो ये बताने की कोशिश करे कि मैंने दीक्षा ली है और मुझे ये प्रमाण पत्र मिला हुआ है। आप लोग भी बौद्ध बनिए। इस मंच पर आपको सारे भिक्षु देखने को मिल रहे हैं। ये भिक्षु भारत के तमाम विभिन्न राज्यों से यहाँ उपस्थित है और उनको मार्गदर्शन करते हुए भदन सुरेश असाई, जो मुख्य रूप से जन्म से वो जापानीज थे मगर भारत में आकर उन्हें भारतीय नागरिकत्व प्राप्त हुई और महाबोधि महावीर मुक्त आंदोलन में उनने काफ़ी अपनी सक्रिय भूमिका भी निभाई है। आज वो इस मंच पर लोगों को उपदेश भी दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अगर मैं जापान से आकर भारत का बन सकता हूँ तो भारत में जन्मे लोग बौद्ध अनुयायी क्यों नहीं बन सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे वो त्रिशरण पंचशील देते हुए उन्हें बुद्ध के अनुयायी बनने के लिए या बुद्ध धम्म का आचरण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं अपने धम्म उपदेश के माध्यम से। भंते लोग हैं, ये बता रहे कि जैसे हम देखते हैं भारत में कि काफ़ी लोग सर ढकते हैं, सर पे पल्लू डालते हैं, कोई सर पे पगड़ी बांधते हैं, तो उनको बताया कि बुद्ध धम्म में ये सारी चीज़ नहीं है, आप अपना पल्लू निकालिए, है ना, पल्लू ढकिए मत। और इस तरह से ये मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं, ये जो भंते आयु है, ये भंते बर्मा से आयु है, थाईलैंड से आयु है, आपस में बातचीत कर रहे हैं और बता रहे कि इतना बड़ा फंक्शन विश्व में कहीं नहीं होता और ये दीक्षा भूमि में ही होता है। हजारों लोग अपने अपने साधन सामग्री के साथ में वहाँ पहुँचते हैं, बाबा साहब को नतमस्तक करते हैं, बुद्ध के विचारों को ग्रहण करते हैं और एक संकल्प लेके जाते हैं कि हम किस धर्म में जन्मे हमें ये पता तो नहीं था, मगर आज से हम बुद्ध के अनुयायी होकर अपने अपने घर लौटेंगे। इस आप जो देख रहे हैं ये जापानीज लोग हैं जो यहाँ पे बैठे बड़ी श्रद्धा के साथ, उनके चेहरे को देखिए, उनके मुखमंडल को देखिए, कितना तेज दिख रहा है। उनके मुखमंडल में धम्म के प्रति जो ताजगी दिख रही है, जो श्रद्धा दिख रही है, ये भी अपने आप में काबिले तारीफ है। शांत बैठे हैं, किसी भी तरह का कोई शोर गुल नहीं करते हुए। और ये यहाँ पे ये जानने के लिए आए कि एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसी क्या कर दिया जो लाखों करोड़ों लोग इस दीक्षा भूमि में आते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं और उनके द्वारा दिए गए बुद्ध धम्मों को स्वीकार करते हुए मानवता के लिए, इंसानियत के लिए कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश यहाँ से वो कोई जापान लेके जाता है, कोई चाइना लेके जाता है, कोई तिब्बत लेके जाता है, कोई श्रीलंका लेके जाता है, कोई थाईलैंड लेके जाता है। इस तरह से संदेश आपको दीक्षा भूमि से मिलता है। और ये जो संदेश ये कोई राजनीतिक तौर पर नहीं दिया जाता है, ये मानवता के कल्याण के लिए दिया जाता है, विश्व के सभी मानवतावादी विचारधारा के लोगों के लिए दिया जाता है कि बुद्ध ने सिर्फ अज्ञान को मात करते हुए मानवीय दुखों का नाश करने के लिए अपना उपदेश दिया है। और ये उपदेश को हजारों लोग आज ग्रहण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं मदन सुरेश असाई के माध्यम से। जो यहाँ पे लोग हैं, कोई यूपी से होगा, बिहार से होगा, एमपी से होगा, महाराष्ट्र से भी होगा, देश के कोने कोने से यहाँ पे आए हैं और उनके द्वारा त्रिशरण पंचशील ग्रहण कर रहे हैं। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियानि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदम समादियानि, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादियानि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियानि, सुरा मीर्य मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियानि। यानी जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली थी तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ही गुरु चंद्रमणि के माध्यम से सबसे पहले त्रिशरण पंचशील को ग्रहण किया, श्रवण किया
और फिर उसके बाद वहाँ पे उस समय करीब करीब 5 लाख लोग जो दीक्षा भूमि पहुँचे थे, महाराष्ट्र के कोने कोने से पहुँचे थे, भारत के कोने कोने से पहुँचे थे। और फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें 22 प्रतिज्ञा दी थी और उस 22 प्रतिज्ञा के साथ ही उनका दीक्षा यानी बौद्ध धर्म स्वीकार करने का वो जो प्रोग्राम था वो सक्सेस हुआ। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतीक के लिए यहाँ पे बाबा साहब का वो स्टैचू लगा गया है, उसके अगल बगल में पंचशील के ध्वज लगे हुए हैं और ये दीक्षा भूमि के बाहर लगा हुआ स्टैचू है। और इसके साथ साथ बुद्ध का स्टैचू भी लगाया गया है ताकि लोग पहले बुद्ध का दर्शन ले, फिर बाबा साहब का दर्शन ले और फिर दीक्षा भूमि के अंदर में प्रवेश करे। इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है। प्रशासन अपनी व्यवस्था करती है, लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करती है, उनकी जानकारी उन्हें पहुंचाने का काम करती है। इस इमारत के बारे में अगर आप सोचते हो तो ये पहला, उस समय दीक्षा भूमि बनने के पहले पहला वो विहार था और इस विहार में काफ़ी भंते लोग रहते थे और इस विहार के माध्यम से वहाँ पे धीरे धीरे फिर दीक्षा भूमि का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। तो उस समय यहाँ पे भंते लोग रुक कर दीक्षा भूमि का काम भी देखते थे। इस पिलर के ऊपर में इंग्लिश में लिखी हुई है बाबा साहब अम्बेडकर की 22 ऑफ वाव, 22 प्रतिज्ञा कि मैं कभी भी ब्रह्म विष्णु महेश इन्हें भगवान नहीं मानूंगा, इनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति कभी इन्हें भगवान नहीं मानूंगा, इनकी पूजा नहीं करूंगा। इस तरह से ये सारे इंग्लिश में 22 प्रतिज्ञा लिखी है। आई टेक अ वॉ ऑफ द फॉलो ऑफ द बुद्धा धम्मा हियर आफ्टर। तो ये पिल्लर जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा उस समय के 5 लाख लोगों को दी थी, उसके मेमोरी में ये पिल्लर यहाँ पे स्थापित किया गया है और हजारों लोग यहाँ पे आते ये 22 प्रतिज्ञा पढ़ते हैं और 22 प्रतिज्ञा अपने जीवन में अनुसरण करने का संकल्प लेके यहाँ से जाते हैं। ये चारों ओर बोधि वृक्ष के अगल बगल में सारे लोग बैठे हैं, कोई ध्यान कर रहा है, कोई किताबें पढ़ रहा है, कोई भिक्षु बैठे हैं। इस तरह का ये जो मनमोहक आपको वातावरण दिख रहा है ये दिल को छूने वाला होता है, काफ़ी हार्ट टचिंग वहाँ का वो इन्वायरमेंट होता है। सोचने वाली बात है कि हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, उन्हें कोई इनविटेशन नहीं देता, उन्हें कोई आमंत्रित नहीं करता, लेकिन फिर भी जब भी विजयादशमी आती है देश के कोने कोने से निकलकर कोई बस से आता, कोई ट्रेन से आता, कोई कैसे आता, किस हालत में आता ये तो हम बयान नहीं कर सकते, मगर बाबा साहब के प्रति अपनी असीम श्रद्धा समर्पित करने के लिए भिक्षु तथा उपासक भी वहाँ पे आते हैं, नमन करते हैं। और इस तरह से पूरा दीक्षा भूमि यानी इसकी शुरुआत जो होती है, स्पेशली ये अगर इस बार 12 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई गई तो 11 अक्टूबर से ही लोग आना चालू हो गए। रास्ते से रैलियाँ निकलती है, लोग झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं हर्ष उल्लास के साथ कि बाबा साहब धन्य हो कि आपने हमें एक ऐसी एनर्जी दी, धम्म के माध्यम से एक ऐसी पहचान दी जो जात भिन्न समाज की रचना करती है, मानवता स्थापित करती है और हमें एक नई पहचान देती है कि आज से हम अपनी जाति पाति व्यवस्था से बाहर निकालकर मानवतावादी सोच रखते हुए बुद्ध धम्म का स्वीकार करते हुए हम यहाँ पे आ रहे। सारे स्टॉल लगे चारों ओर, जिधर देखे आपको स्टॉल दिख रहे, लोग आते हैं। यहाँ पे भारत पेट्रोलियम का स्टॉल दिख रहा है जो हर साल लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है और लोग कतार में खड़े रहते हैं। सारे लोग अपनी अपनी ओर से जितना उनको पॉसिबल हो उतनी सेवा करने की कोशिश करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है, ये सारे अपने अपने डिपार्टमेंट की ओर से है। अपने अपने ये धम्म चक्र प्रवर्तक संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ यानी संत तुकडोजी महाराज के नाम से नागपुर में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, उनके माध्यम से अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है। लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम होता है।
बैठते हैं, उन्हें जो लगता है वो मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आपको हजारों स्टॉल वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसी वैसी और भी स्टॉल आपको दिखाई दिए जाएंगे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये बहुत ही मनमोहक ऐसी दृश्य आप देख रहे हो। किस तरह से बैनर लगे हैं, किस तरह से गेट्स लगे हैं। कोई कंपनी अपने आप को लॉन्च कर रही है, अपने एडवर्टाइजमेंट कर रही है। धूप का है, छाव है, कोई परवाह नहीं। बस एक ही श्रद्धा उमड़ी है कि हमें दीक्षा भूमि जाना है। यहाँ पे आई कैम्प चल रहा है। यानी 68वें धम्मचक्र परिवर्तन दिन के शुभ अवसर पर लोग उन्हें चश्मे फ्री में बांट रहे हैं, उनका आंखों का इलाज कर रहे हैं। क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, काफ़ी गरीब लोग आते हैं, और उनको इस अवसर में उनको क्या अच्छा दे सकते हैं वो अलग अलग एनजीओ, अलग अलग संस्थाएं वहाँ पे करने की कोशिश करती है, अपनी अपनी सेवा देने की कोशिश करती है। तो ये धीरे धीरे हम इसके आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये IDBI के लोग जो है, बैंक IDBI बैंक भारत में ये बैग्स बांट रहा है। ये भी सोचने वाली बात है कि जो लोग आ रहे हैं शायद उनके पास में झोला है नहीं है, बैग है नहीं है, तो उन्हें IDBI बैंक द्वारा बैग्स बांटे जा रहे, थैली बांटी जा रही है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। एक साइड से लोग आ रहे हैं तो एक साइड से लोग जा रहे हैं। तो ये नागपुर के पुलिस प्रशासन के माध्यम से आने जाने की, ट्रैफिक की भी व्यवस्था अच्छी तरह से वहाँ पे होती है। लोगों को सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। ऐसी नहीं है कि असुविधा होती है, लेकिन ये सारे सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन अपने अपने द्वारा क्या लोगों को अच्छा दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। चाहे लोगों को वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तृष्णा तृप्ति केंद्र वो बोर्ड्स लगा हुआ है, वेलकम का बोर्ड्स लगा है। वहाँ पे वहाँ की कुछ लोकल नेता होंगे, जो भी होंगे, वह अपनी पहचान वहाँ पे बनाने जा। राष्ट्रीय मजदूर यूनियन, तो राष्ट्रीय मजदूर यूनियन के पीछे भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ था। स्मृति विशेष मधुकरराव तामगाडगे चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उन्हें भी इस तरह से मार्गदर्शन किया जा रहा है। उनके संस्था की ओर से उनको पानी की बोतल्स या फिर कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ ऐसी प्रोग्राम जो लोगों को मालूम नहीं है, गवर्नमेंट्स के रूल एंड रेगुलेशंस नहीं मालूम है, नए GRs नहीं मालूम है, चाहे शेड्यूल कास्ट के लिए हो, शेड्यूल ट्राइब के लिए हो, OBC के लिए, वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की इन लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो, और ये पहली बार लोटस टीवी के माध्यम से खास तौर पे ये प्रोग्राम बनाया गया है, जो UK और यूरोप के जितने भी दर्शक है जो आज के दिन नागपुर के नागभूमि में नहीं पहुंच सकते, उनके लिए स्पेशल लोटस टीवी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वहाँ पे जाके शूट किया, और वो सारी फुटेज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दी जा रही है और आप इसको देख रहे हैं। तो लोटस टीवी का भी धन्यवाद कि वो इस तरह से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने आप को आज नागपुर में ही पहुंचाने का उसने कोशिश किया। उनकी टीम गई और उनकी टीम ने ये सारा शूट किया, तो उस टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मूर्तियाँ बेची जा रही है। ये बुद्धिस्ट इंटरप्रिटेशन के माध्यम से यहाँ पे स्टॉल लगता है। वो लोगों के व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो आप अगल बगल में लोग आते हैं, बाबा साहब का दर्शन करते हैं और कुछ नए स्टॉल में जाते हैं, कुछ नया मिल सकता है। क्योंकि एक दीक्षा दिवस ही, विजया दिवस एक ऐसी मौका होता है कि उन्हें दुनिया की बाबा साहब के माध्यम से या फिर बुद्ध से जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें उस समय दीक्षा भूमि में उपलब्ध होती है, मिलती है। जो आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी वो यहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ लोग किताबें बेच रहे हैं, संविधान की बुक्स भी यहाँ पे है, नए साल के कैलेंडर्स भी है, चाहे फिर किसी भी प्रकाशन के माध्यम से हो। तो बाबा साहब का सारा साहित्य आपको इस वीडियो के माध्यम से दिख रहा होगा कि किस ने, ये भी आप सोच सकते हैं कि विश्व का एक ऐसी इंसान जिसके ऊपर में हजारों गाने बने, हजारों साहित्य लिखे गए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और हमारे लिए फक्र की बात है कि
कि हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के भी अनुयायी है और उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए अग्रसर है। ये देखो बूढ़ी माई कहाँ से आई, किधर से आई। उस समय बारिश भी हुई, काफ़ी बारिश हुई। आप देख रहे हो कि स्टॉल के अगल बगल काफ़ी पानी फैला हुआ है, थोड़ा कीचड़ सा जमा हुआ है। तो ये बारिश भी आपको लेकिन बारिश की परवाह न करते हुए लोग वहाँ से निकल जा रहे। मुझे आज के वीडियो की जानकारी देते देते एक बात याद आ रही है कि कभी हम डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी की टीम दीक्षा भूमि गई थी और उस समय काफ़ी मेंबर्स थे, जल्ली थे, सुमन थे और भी काफ़ी मेंबर्स थे, बद्धन थे। और ये लोग बारिश में जा रहे थे, बारिश आ रही थी, बेपरवाह होकर, बेफिक्र होकर बाबा साहब का नारा लगाते हुए ये दीक्षा भूमि की ओर बढ़ रहे थे। सारे लोग देख रहे थे कि कहाँ से लोग आए। जब लोगों को पता चला कि ये इंग्लैंड से आए, यूके से आए, तो सारे लोग इनके पैर भी चूम रहे थे कि आप इंग्लैंड से आए हो, बाबा साहब की धरती पे आए हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है। तो ये यूके से ही नहीं तो और भी कई जगह से लोग आए थे, अमेरिका से भी आए थे, जापान से भी आए थे। ये समता सैनिक दल का वॉलंटियर है जो लोगों को मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग जा रहे हैं, ये कतार में लगी हुई है। जो आप पीछे में कतार देख रहे हो, ये कतार खाने की कतार नहीं है, ये 1-1.5 किलोमीटर तक दीक्षा भूमि के अंदर में जो बाबा साहब की अस्थि रखी हुई है, वो अस्थि का दर्शन लेने के लिए वो कतार है। यानी कम से कम सोचो 1.5 किलोमीटर की है कतार है, तो सोचो उस कतार में कितने लोग होंगे। कम से कम हजारों लोग का नंबर होगा, हजारों लोगों के बाद में किसी का नंबर आता होगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था कि बाबा साहब के प्रति धन्य धन्य हो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कि आपने हमें इस नरक से निकाल कर आपने हमें भगवान बुद्ध का वो धम्म दिया और एक पहचान दी। और उस पहचान के साथ में आज हम गर्व से कहते हैं कि हम सभी के सभी बौद्ध है, हम सभी की सभी बुद्धिस्ट है और हम जात भिन्न समाज के निवासी है, जहाँ पे जात पात का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से ये सारी व्यवस्था, एक लेडीज किसी की राह दिख रही है, किसी को सोच रहे ये जो को बुढ़ी आई छोटा सा यानी कपड़े में बांधकर कहाँ से आई, किधर से आई, कोई जान नहीं पहचान नहीं, सिर्फ एक ही उसके दिल दिमाग में चलता है, बाबा साहब ने कहा ना तो मुझे जाना है, बस यही उनके जहन में बैठा हुआ है। कोई इनविटेशन नहीं। हम तो घर में कोई फंक्शन करते हैं, शादी ब्याह करते हैं तो अपने रिश्तेदारों को बांटने के लिए इनविटेशन देते हैं। अगर गलती से किसी रिश्तेदार को इनविटेशन नहीं गया तो वो नाराज हो जाता है, तो मैं तो आपकी शादी में भी नहीं आऊँगा, मैं तो आपकी इस फंक्शन में भी नहीं आऊँगा। इन बिचारों को, इन सारे लोगों को किसी ने इनविटेशन नहीं दिया। सिर्फ एक ही इनविटेशन है कि आज दीक्षा दिवस है, आज विजयादशमी है, आज अशोका विजयादशमी है, आपको आना है, निकल पड़े। ये बात करते हुए मुझे एक किस्सा भी याद आ रहा है। वो किस्सा भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लेने वाले थे, उस समय पुणे से एक न्यूज़पेपर रिलीज होता था। उस न्यूज़पेपर का नाम था केसरी और वो न्यूज़पेपर के एडिटर थे तिलक। और तिलक ने एक टाइटल दिया था उस न्यूज़पेपर में कि डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी सविता अंबेडकर यही नागपुर के नागभूमि में दीक्षा लेने वाले हैं, कोई भी इंसान उनके साथ में दीक्षा लेने नहीं जा रहा है। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमानजनक आर्टिकल था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कोई इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहा, मैं और मेरी पत्नी सविता अंबेडकर नागपुर के नागभूमि में दीक्षा लेने जा रहे हैं, जिन्हें जिन्हें आना है वो सिर्फ सफेद कपड़े पहनकर आ जाए। और लाखों लोग वहां पे इकट्ठा हो गए, जिस तरह से अभी आप देख रहे हो। ये रात का समय है और इस रात के समय में अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर हम आपको ड्रोन कैमरा का अगर वीडियो दिखा सके तो आप जान जाओगे कि लाखों के तादाद में लोग नागपुर की दीक्षा भूमि में उपस्थित है। यानी
जो सर्वे हुआ, सर्वे में तो ये भी कहा कि इस बार कम से कम 25 लाख लोग बिगर किसी इनविटेशन के नागपुर के नागभूमि में बाबा साहब के विचारों को नतमस्तक होने के लिए और दीक्षा दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पहुंचे। सोचने वाली बात है, वाकई में सोचने वाली बात है। कोई नेता अगर कोई रैली करता है तो उसे लोग आमंत्रित करने पड़ते हैं। ये जापानीज लेडीज जो यहाँ पे दीक्षा भूमि के उस मौके पर बहुत बड़ा स्टेज सजाया जाता है, वहाँ पे भिक्षु को आमंत्रित किया जाता है, भिक्षु वहाँ पे धम्म देशना देता है। देखो इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे लग रहा है कि ये तो सिर्फ झलक है, इसके बाहर का तो ये जो लैंड है ये 14 एकड़ लैंड का एरिया है, लेकिन इसके बाहर भी लाखों लोग, पूरे नागपुर शहर में लोग हैं। तो ये 25 लाख का लोगों का आंकड़ा है। रिकॉर्ड ब्रेक पब्लिक यहाँ पे आई हुई है। आप जान सकते हो कि ये कैसी, क्या इसे आप मिरेकल कहते हैं या नहीं कहते, मगर ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वो शक्ति है कि जो आज आपको यहाँ पे दिख रही है। इस शक्ति को नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता है। किस तरह से देखिए, पंचशील ध्वज, लोग खड़े हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, जहां मिली वहां पे जिस तरह से मिली उस तरह से वहां के विचार, जो भी वहां का वक्ता है, चाहे जापानीज वक्ता हो चाहे भिक्षु हो, उनके विचार भी सुन रहे हैं और उन विचारों को ग्रहण कर कर अपने आप में एक संकल्प ले रहे हैं कि आज अगर मैं घर लौटूंगा तो अपने सारे पुराने रीति रिवाज को त्याग कर श्री भगवान बुद्ध के धम्म के पद चिन्हों पे चलने का संकल्प। ये जो है ये स्पेशली साउथ अफ्रीका से आए हुए स्पीकर है और काफ़ी अच्छा उनने स्पीच दिया था। इनका नाम तो मैं नहीं जानता, मगर मुझे वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली, ये साउथ अफ्रीका से आए थे और अपना काफ़ी अच्छा स्पीच दे गए। साउथ अफ्रीका में जैसी नेल्सन मंडेला इनकी फिलॉसफी चलती है, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में आज अम्बेडकरिज्म की बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, अपनाते हैं और अम्बेडकरिज्म विचारधारा को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। खास तौर पे उनका ध्यान केंद्रित होता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखित हुई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में। तो ये सारा सिलसिला आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई जा रहा है। आप जान रहे हो, ये लॉर्ड बुद्धा चैनल जब ओपन हुआ था उसके कुछ उनके पीछे कुछ विदेशी लोग बैठे हैं, शायद कोई जापान से, कोई थाईलैंड से है, और इस बार थाईलैंड और जापान के लोग बड़े पैमाने में वहाँ पे उपस्थित थे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, पीछे में दीक्षा भूमि देख रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैं आपको देने की कोशिश की, वो जानकारी जितनी मुझे मिली है वो सारी जानकारी आपको देना की प्रयास कर रहा हूँ। ये भंते ज्योति रत्न है, उनके बगल में भंते संगरत्न मान के बैठे हैं, उनके बगल में भजन सुरेश हसाई बैठे हैं। भंते संगरत्न मान के ये जापानीज भंते हैं। भंते ज्ञान और ज्योति जो है वो ताड़ोबा के जंगल में रहते हैं, जंगल में। और भंते सुरेश हसाई के तो बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जापानीज देश में जन्म लेते हुए भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करते हुए बौद्ध धम्म के लिए अपना आजीवन नागपुर में व्यतीत कर दिया, समर्पित कर दिया, और बुद्ध गया आंदोलन के जनक बनकर भी वो उभरे हैं। तो भंते ज्ञान ज्योति भी अपना उपदेश लोगों को दे रहे हैं। तो इस तरह से ये सारा प्रोग्राम आप लोटस टीवी के माध्यम से देख रहे हो। वेलकम बैक। आप सब ਦਾ बहुत बहुत फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ਮੈਨੂੰ पूरा यकीन है कि ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਅਵਰ ਮੋਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਬੈਨੇਬਲ ਪੰਤੇ ਧੰਮਨਾਗ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
आपकी दी मुलाकात करवानी चाहता हाँ। पंडित जी आपको आपको बहुत भी बहुत नमो प्रणाम, बुद्धाय, जय नमो भीम। बुद्धाय, जय कि भीम, जय आपने प्रभु। मुझे आज फिर लोटस टीवी के ऊपर में अपने विचार साझा करने का मौका दिया और मैं आशा करता हूँ कि लोटस टीवी जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल मीडिया की विंग है और पूरे यूके और यूरोप में अपने विचार साझा करता है, तो लोटस टीवी के सभी मेंबरों को मेरी ओर से दीक्षा दिवस की और आज के दिन हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। थैंक यू बनते जी। आपने जो इतना प्रोग्राम देखा उसी के ही हिसाब से, उसी के संबंध में कुछ क्वेश्चंस हैं जो अगर आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल, आपको इजाज़त है। बनते जी, वनबल बनते जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐतिहासिक, सभ्याचारक और राजनीतिक ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਵਾइव करने के लिए नागपुर ਨੂੰ क्यों चुनिया? ये सबसे बड़ी बात है कि दुनिया इतना बड़ा मुल्क था, सब कुछ थे, तो उन्होंने नागपुर को ही क्यों चुना? इसका तो दो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जी। एक कि नागपुर ये जो है नागवंशियों की भूमि है जी। और इसका हमें बौद्ध साहित्य में भी कुछ किताबों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। एनल्स एंड एनालिटिक्स ऑफ राजस्थान ये जो बुक्स है, इसमें नागपुर की अच्छी तरह जानकारी दी हुई है। जी। दूसरी अलेक्जेंडर कनिंगम, उसने भी नागपुर के बारे में काफ़ी अच्छा जिक्र किया हुआ है। जी। तीसरी गेजेनिटर्स और नागपुर ऑफ हिस्ट्री, इसकी भी काफ़ी नागवंशी की कैसी वहाँ पे परंपरा थी, संस्कृति थी और उनको नाग लोग भी कहा जाता था। जी। और इस तरह से जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिल्ली में थे और उन्हें दीक्षा समारंभ करना था, जी। तो उस समय उनके सामने एक ऑरेंज था, ऑरेंज। तो आप जानते हो कि ऑरेंज ये नागपुर में सबसे ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। और नागपुर में ज़्यादा होने की वजह से उसे ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऑरेंज खा रहे थे और उनको खाते खाते एकदम से वामन राव गोडबोले की याद आ गई। जी। और वामन राव गोडबोले की याद आ गई, तो वामन राव गोडबोले तो नागपुर का रहने वाला है और फिर उसके हिसाब से उन्हें सर नागपुर तो ये नाग लोगों की भूमि है। एक बात ये होगी। दूसरा, नागपुर उस समय सेंटर प्लेस था इंडिया का। अच्छा। लोगों को आने जाने के लिए सुविधा अच्छी थी। जी। एक वहां के जो लोग थे वो कर्मठ थे, बड़े श्रद्धावान थे। ये बेनिफिट बाबा साहब ने सोचा। ये सारे बातों को ध्यान में रखकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनसे कहा, वामन राव गोडबोले से, कि वामन, क्या मैं नागपुर में दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा का प्रोग्राम कर सकता हूं? तो वामन राव गोडबोले खुशी के मारे झूम उठे, बोले बिल्कुल, लेकिन समय कितना है? तो उसके हिसाब से नागपुर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चुना कि वो नाग लोगों की भूमि थी। वहाँ पे नाग नदी अभी भी बहती है, उसी के नाम से नागपुर के नाम से नाग नदी बताई गई है और इसका बौद्ध साहित्य में काफ़ी बार जिक्र किया हुआ है। जी। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय, क्योंकि मिडल था, लोगों को आने जाने की सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी, लोगों की श्रद्धा काफ़ी थी और वहाँ पे बाबा साहब के विचारों को जानने वाले, समतावादी सोच रखने वाले, जात बिन समाज की सोच रखने वाले लाखों लोग वहाँ पे थे जो वामन राव गोडबोले के मार्गदर्शन में भी काम करते थे। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खास तौर पर नागपुर को ही चुना। जी, थैंक यू वेरी मच। बाबा साहब अपने समय के प्रमुख नेतावां नाल कई बार आमने सामने जातिवाद, समाजिक धर्म, लोगों के संस्थावां दा विरोध किया। इस बारे तुसी की कहोगे? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1927 से जब उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की, तो चाहे वो मानव अधिकार की मूवमेंट्स हो, चाहे मूलभूत अधिकार की जो मूवमेंट हो, जो उनने एक क्रांति की पहल की, तो उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच एक तरफ होती थी और भारत के तमाम नेताओं की सोच एक तरफ होती थी। और इस बीच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के काफ़ी मतांतर
काफ़ी बड़े बड़े नेताओं से हुए। राउंड टेबल की हम बात करें तो उसमें गांधी से डायरेक्ट डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को टकराना पड़ा, आप सभी जानते हो। जी। तो ये मतांतर चलता रहा, लेकिन खास तौर पे जब 14 अक्टूबर 1956 पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा प्रोग्राम का आयोजन किया, तो उस समय सबसे पहले विरोध करने वाला अगर कोई व्यक्ति सामने आया तो वो गांधी थे। उसके बाद में डॉक्टर राधाकृष्ण, जो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति थे। जी जी। फिर हिंदू महासभा के कई दिग्गज नेताओं ने विरोध किया, आरएसएस के कई दिग्गज नेताओं ने विरोध किया, दीनदयाल उपाध्याय ने विरोध किया, और खास तौर पे विरोध करने वाला एक शख्स था सावरकर। इसने तो जमकर विरोध किया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर धर्मांतर कर भारत के तमाम शोषित पीड़ित समाज में बंटवारा कर रहे हैं। मगर बाबा साहब ने कोई परवाह नहीं, क्योंकि बाबा साहब तो उस आग पे चल चुके थे जाति व्यवस्था की, छुआछूत के। तो उनको एक ऐसी समतावादी मूलक विचारधारा चाहिए थी, ऐसा समतावादी धम्म चाहिए था जो लोगों को इस जातिहीन समाज से बाहर निकाले। तो इन लोगों ने जमकर विरोध किया जी। लेकिन बाबा साहब की कर्मठ, बाबा साहब की सोच वो उस समय की नहीं थी। आज हम देखते हैं तो दीक्षा भूमि में उस समय 5 लाख लोग थे दीक्षा लेने के लिए, तो आज 25 से 30 लाख लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। कि बाबा साहब की 100 साल पार करने वाली सोच वो थी, और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बगैर किसी की परवाह किए, चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता हो, चाहे हिंदूवादी हो, चाहे सामाजिकवादी हो, या फिर राजनीतिक, किसी की परवाह न कर दो, सबसे पहले दीक्षा। और यही बाबा साहब को संपूर्ण बाबा साहब बनाता है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो सारी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसी के लिए सब दुनिया जब भी कभी मुसीबत की घड़ी आती है तो दुनिया उनको याद करती है कि उतने लाखों करोड़ों लोगों के भी खिलाफ होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा बिल्कुल सही बात है ना। तो बंदे जी, ये छोटी सी फोन्स आए हैं, थोड़ा सा कर दिया जाए। प्रकाश मम्मन जी तस्वन को दीक्षा का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा सी मंजूर रत्तू जी प्रोग्राम लाइक करते हैं। अमिताभ कौलतार, दर्शना कौलतार नंजो विरदी के जन्मदिन दियां बधाइयां दिंदे हैं। तो केएल चांद जी बेडफोर्ड तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सोडी जस्सल, कमलेश जस्सल सी उन श्रद्धांजलियां दिंदे हैं। सोनलाल सांपला जी जर्मन तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत बधाई दिंदे हैं। नरेश मडार, कविता मडार, बहुत ही वधिया प्रोग्राम है। सुखदेव सुमन प्रोग्राम की शलाघा करते हैं। सुरिंदर चल्ली लोटस टीवी बधाई दे पात्र हैं जो दीक्षा का प्रोग्राम दिखाया। थैंक यू चली साहब। मिंदो रत्तू, प्रिया रत्तू अते अनीश रत्तू प्रोग्राम वाकई काबिल तारीफ है, बहुत वधिया। शीश बदन प्रोग्राम की शलाघा करते हैं, थैंक यू। बलदेव विरदी, नंजो विरदी प्रोग्राम देख रहे हैं तो पसंद भी कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। हरमेश जस्सल, सत्या जस्सल प्रोग्राम की शलाघा कर रहे हैं, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसराज मैमी, पालो मैमी प्रोग्राम पसंद करते हैं, थैंक यू। निर्मला भाटिया जी प्रोग्राम वाकई बहुत वधिया है, काबिल तारीफ है। शादी सल्लन, सत्या सल्लन, दीक्षा भूमि की दृश्य देख के बड़ा मन नू चाह होया, बड़ा खुशी लगी, क्योंकि उदन वो सो भी ये भी हमारे साथ थे जो सब गए थे। प्रेम चमकीला, नरेंद्र कौर, श्यामलाल कैंथ है प्रोग्राम वाकई बहुत वधिया है। तो देव सुमन, बख्शो सुमन प्रोग्राम जी बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच आप सब का जो आप जी ने फोन किए। पंते जी, भारत विच हिंदू सरकार का सुपना देखण वाले विदेशों में जाके अपने आप नू बोधी ਜਾਂ होर पछाण दे रूप में पेश करना एक इस बड़े संवेदनशील मुद्दे दे उत्ते ते तुसीं इहनूं की कहोगे? ये एक्चुअली ये जो सवाल है, भारत तो बुद्ध की धरती है, ये सारे विश्व को मालूम है जी। मगर भारत में जो भारत से जो नेतागण विदेश में जाते हैं वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर प्रेजेंट करते हैं जी।
अब वो ये देखते कि भारत की आबादी किसके झुकाव की तरफ है। जी तो भारत की 80% आबादी तो हिंदू धर्म की तरफ झुकाव में है। जी 20% में मुस्लिम आते, बुद्धिस्ट आते, क्रिश्चियन आते, सिख आते, जो भी है। जी तो हिंदू लोगों को लुभाने के लिए वो इंडिया में कुछ और बात करते हैं, और जब भारत के बाहर जाते हैं तो वहां के लोगों को लुभाने के लिए वो बौद्ध धर्म की बात करते हैं। जी चाहे यहां से जाएंगे तो उनके लिए बुद्धा की तस्वीर लेके जाएंगे, धम्मपद लेके जाएंगे, बोधि वृक्ष लेके जाएंगे। तो ये राजनीतिक मसला है, ये मसला इससे कहते कि धूर्त नीति है। जी। तो नेताओं की अपनी धूर्त नीति होती है, तो नेताओं की कोई नीति नहीं है, उसी को तो नेता कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल और सही यही चल रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान काफी कट्टरवादी धार्मिक संगठन का भी है। वो भी धीरे धीरे इसे पुशअप कर रही है कि आप वहां पे कुछ और करें, यहाँ पे कुछ और करें। तो ये राजनीतिक मसला है, मगर ये चाहे कुछ भी करे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो सोच रखी कि भारत बौद्ध राष्ट्र है, भारत बौद्ध राष्ट्र रहेगा, और भारत बौद्ध राष्ट्र बनकर ही विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। और इसका आपको एग्जाम्पल अगर देखना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हो। जो आज कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात हो रही है, लेकिन बाबा साहब ने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को राइट कर दिया कि ये मुद्दे है, इलेक्शन के मुद्दे कहा जा सके या फिर लोगों को लुभाने के मुद्दे है, तो ये इनके अपने अपने मुद्दे हैं। ये मुद्दे सही में होने वाले नहीं है, क्योंकि ना तो ये पॉसिबिलिटी है और ना ही होने वाला है। जी थैंक यू ਬੰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧਮਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। इस विचार बारे की कहोगे? यस, ये तो बात है कि ये क्योंकि बाबा साहब की हालत, बाबा साहब जानते थे कि वो बीमार है, डायबिटिक है, और जब उन्होंने दीक्षा की, इसलिए उन्होंने दीक्षा का प्रोग्राम पहले लिया, और दीक्षा का प्रोग्राम लेने के बाद में हमारा एक समय समझिए कि वो एक खराब समय था कि बाबा साहब 2 महीने के बीच में हमसे बिछड़ गए। लेकिन बाबा साहब ने एक ड्राफ्ट किया था जी कि दीक्षा भूमि के बाद में वो चंद्रपुर के बाद में वो मुंबई में होने वाला था, मुंबई में होने वाले के बाद में यूपी में, एमपी में, राजस्थान में। तो बाबा साहब ने पूरा 1-2 साल का पूरे भारत का ड्राफ्ट बना लिया था कि मैं यहाँ इस तरह से इसी समय ये सारे दीक्षा के प्रोग्राम करूंगा। और बाबा साहब की वो सोच भी थी, अगर उनको जानते थे कि शायद किसी का साथ देते नहीं देते, कि बुद्ध कहते कि सब कुछ अनित्य है, और वो अनित्य के कारण बाबा साहब इतने ज्ञानी, तो उन्होंने कहा कि मुझे गलती से अगर 2 साल भी मिल जाते हैं तो मैं पूरे भारत को बौद्धमय कर दूंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बाबा साहब 2 महीने के बीच चले गए, और उसके बाद में उनका ये मिशन जो एकता का प्रतीक है, समता का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है, वो मिशन अधूरा रह गया। दीक्षा तो हो रही है, लोग बहुत तो बन रहे, लेकिन जिस तरह से बाबा साहब का प्लान था 2 साल, तो ये जो प्लान के पीछे एक थॉट पैदा होता है, आपको मालूम हो या नहीं हो, अशोक सम्राट ने अपने जीवन में 37 और 27 ईयर के बीच में 84 शिलालेख का निर्माण किया जी। तो एक दिन में कितने शिलालेख बने होंगे, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 2 साल में पूरे भारत का, उस समय जो आबादी थी वो 65 से 70 करोड़ की आबादी थी, और 65 के 70 करोड़ की आबादी को कन्वर्ट करने के लिए उनकी प्लानिंग कैसी होगी। जी दैट्स राइट। बंदे जी वक्त जो हमारा तो बड़ी जल्दी से जा रहा है, सवाल तो एक और भी था, तो चलो कोई बात नहीं, है ना, बाकी तो रह गए हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आप भवतु सब मंगलम संतु सब देवता एक बार कहे तो प्लीज। सबसे पहले तो मैं लोटस टीवी की सारी टीम को मेरी ओर से, बुद्ध धम्म संघ की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये पहली बार इस तरह से लोटस टीवी के माध्यम से दीक्षा भूमि का दृश्य एंड दीक्षा भूमि की जो फुटेज है वो लोटस टीवी के माध्यम से यूके और यूरोप के लोगों को दिखाई गई है। और उसके बाद में ये दीक्षा भूमि कार्यक्रम के कुछ संदर्भ में आज जो वार्तालाप हुई, उसके लिए मैं आज के होस्ट
मुल्क राज्य बंधन, उन्हें भी धन्यवाद दूंगा। हमारे आईटी सपोर्टर गौतम रत्तू, उन्हें भी धन्यवाद दूंगा। और दर्शकों को भी नमो बुद्धाय, जय भीम, शुभ आशीर्वाद। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। आप सबको बुद्ध धम्म संघ की ओर से शुभ आशीर्वाद। भवतु सभ मंगलं, रक्षन्तु सभ देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते, सब धम्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते, सब संघानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। साधु साधु साधु। फिर एक बार आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। इसी तरह से लोटस टीवी आपके लिए नए नए विचार लेके आता रहेगा। साधु साधु साधु। थैंक यू वेरी मच कुंते जी, आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू, थैंक यू वेरी मच इंडी। नमो बुद्धाय, जय भीम। किस्मत जाग गई, कौम जिंदा हो गई।
गई कि कौम जिंदा हो गई। भारत की किस्मत जाग गई कि कौम जिंदा हो गई। भारत की किस्मत जाग गई कि कौम जिंदा हो गई हो। दुनिया दे लोग भीम जी तेरी ऊंचाई मिलते रहे। तेरी ऊंचाई मिलते रहे। तेरी ऊंचाई मिलते रहे। रत्तू जो तेरे अपने